السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوا عليهم وهم أبناء 10. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من أدب حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وبارك وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا کرم اور احسان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی بے شمار نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت زندگی عطا فرمائی، قابل فخر ایمان عطا فرمایا. امام الانبیاء تاجدار مدینہ سرور کائنات فخر موجودات آقائے مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیک پرہیزگار دیندار خاتون کے انتقال پر تعزیتی مجلس میں دین کی بات کہنے اور سننے کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بزرگوں، یہ سن ہجری 1444 ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام قریب الختم ہے، آخری عشرہ باقی ہے. اسلامی سال اسی مہینے سے شروع ہوتا ہے. بڑا مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے. ابتدائے آفرینش عالم سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو محترم بنایا ہے. سال میں رمضان المبارک کے علاوہ 4 مہینے بڑے ہوتے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ. زمانہ جاہلیت میں بھی مکہ کے مشرک لوگ ان مہینوں کی بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، حالانکہ اگنان لوگ تھے، لیکن عظمت ان کے دل میں تھی. موجودہ دور میں
اور ماضی میں فرق یہ ہے، آدمی کے پاس علم نہ ہو لیکن انسانیت ہو، آدمی کے پاس علم نہ ہو لیکن اخلاق ہو، آدمی کے پاس علم نہ ہو لیکن مروت ہو۔ پہلے علم نہیں تھا، اسی لیے اس دور کو جاہلیت کہتے تھے، اگنان کا دور، علم بالکل نہیں تھا۔ جب علم نہیں ہوتا ہے تو دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ علم سے احکام کی تابعداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو آدمی اللہ کے احکامات کا تابعدار ہوتا ہے اس کے دل پر خدا کا خوف اور لرزہ طاری ہوتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو آدمی کو ہدایت کی بات دل میں اترتی نہیں ہے۔ یہ مانڈوے کی کھیت ہیں سب، اس پر جب تک ہل سے جوتا نہ جائے، کڑیے سے کھیڑا نہ جائے، اس پر سمار نہ کیا جائے، اس پر چاش نہ کیے جائے، اس میں کھاد نہ ڈالا جائے، تب تک یہ نرم ملائم زمین جب تک بنائی نہ جائے تو اس میں مانڈوی ہوتی نہیں ہے۔ اس کی ایک سسٹم ہے، سخت زمین پر اناج گلے اگتے نہیں ہیں، اس طرح انسان کے دل کی زمین بھی سخت ہو جاتی ہے تو ہدایت کی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ اس لیے دل کی زمین کو نرم بنانے کی محنت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بھیج کر کے کر دی، اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ہر پیغمبر کی سیرت اٹھا کر کے آپ دیکھو۔ جب آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو 570 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے آقا تک زمین نبوت سے خالی تھی، محنت سے خالی زمین۔ ایک طرف مکہ کی زمین پہلے سے کوہستان، یعنی پہلے سے پہاڑی وستار تھا یہ، اور وہاں کے انسانوں کے دلوں کی زمین بھی پتھروں سے زیادہ سخت قرآن میں ہے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت دل بن گئے۔ تو 570 سال زمانہ نبوت سے خالی رہا، اب انسانوں کے دلوں کی زمین بھی سخت ہو گئی، اور سخت دل پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی ہے، جیسے سخت زمین پر، سنگلاخ زمین پر اناج گلے کی پیداوار نہیں ہوتی۔ تو پہلے زمین کو نرم ملائم کیا جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دلوں کی سختی کو پہلے ختم کر کے اس کو نرم ملائم بنایا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کا خوف دلوں میں پیدا کر کے اندر کی کایا کو نرم بناتے ہیں۔ پھر جب نرم زمین دل کی ہو جاتی ہے، اب ہدایت کی بات ان دلوں پر اثر کرتی ہے، ورنہ دل کی سختی جب انسان کی ہو جاتی ہے تو انسان اپنی پیٹ کی اولاد کا بھی نہیں رہتا، دوسروں کی بات تو دور کی ہے، اپنی پیٹ کی سگی اولاد کا بھی آدمی رہتا نہیں۔ اس طرح جب انسان کے دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے تو حق اور باطل کے درمیان میں تفرقے کا مزاج ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی دل کی زمین سخت ہو جاتی ہے تو انسان کھرے اور کھوٹے کے درمیان میں تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور جب انسان کے دل کی زمین جب سخت ہو جاتی ہے تو انسان کو اپنے اور بیگانوں کے درمیان میں فرق اور تمیز باقی نہیں رہتی۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عالم ازداد بنائی، اور ضدوں سے چیزیں پہچانی جاتی۔ ابھی رات پوری ہوئی، دن آ گیا، اب دن کو سمجھنا ہے تو کہیں گے جو رات کا اپوزٹ ہے، اور کہیں دن رات کو سمجھنی ہے تو کہا جو دن کا اپوزٹ ہے اس سے یہ چیز سمجھی جاتی ہے۔ دنیا عالم ازداد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق یہاں جانبین سے رکھے ہیں، دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک طرف سے حق کی ادائیگی نہیں ہوتی۔
जानिबैन से हुकूक की अदायगी। औलाद के हुकूक माँ बाप पर हैं तो माँ बाप के हुकूक भी औलाद पर हैं। शौहर के हुकूक बीवी पर हैं तो बीवी के हुकूक भी शौहर पर हैं। इस तरह नौकर के हक सेठ पर हैं तो सेठ का हक भी नौकर पर है। इंसान पर जानवरों के हुकूक हैं तो जानवर पर भी इंसान के हुकूक हैं। ज़मीन के हक इंसान पर है तो इंसान के हक भी ज़मीन पर है। जब तक दो तरफा मामला बराबर चलता है तो दुनिया में अमन और अमान कायम रहता है, और किसी एक तरफ भी गड़बड़ी होती है तो फिर इख्तिलाफ, तनाफुर और नफरत पैदा होती है। इसलिए जब तक समतोल बाकी रहता है तब तक कायनात का निज़ाम सही चलता है, और जब एतदाल ख़त्म हो जाता है तो कायनात के निज़ाम में खलफशार पैदा होता है। इस तरह ये दुनिया है। इस दुनिया में अल्लाह ने नफ़े की तासीर भी रखी है, और मखलूक की हर चीज़ में अल्लाह ने नफ़े की तासीर भी रखी है और नुकसान की तासीर भी रखी है। बारिश हद एतदाल से ज़्यादा हो जाए तो वो खराबी पैदा कर देती है, और एतदाल के साथ रहें तो वो खराबी नहीं रहती। और अगर एतदाल से बिल्कुल कमज़ोर हो जाए तो भी इंसान के लिए परेशानी है। अल्लाह ताला ने हुकूक जानिबैन से रखे हैं, जो दोनों तरफा हक भी है और दोनों तरफा हुकूक की अदायगी का मुतालबा भी। इन हुकूक में से मैंने कुरान करीम की आयत और अहादीस पढ़कर एक मसले पर बहस करनी है और एक बात समझाने की कोशिश की जाएगी कि आम तौर पर इंसान पर अपने माँ बाप के हक है, इस तरह माँ बाप पर औलाद के हुकूक है। माँ बाप के हुकूक औलाद पर इसको बयान किए जाते हैं और करना भी चाहिए, इसलिए कि वो मुरब्बी हैं, इनसे दुनिया में वजूद मिला है हमको। वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमतों के मालिक हैं, और औलाद का वजूद माँ बाप के वजूद के ताबे हैं। और अल्लाह और पैगंबर के बाद सबसे बुनियादी हक इंसान पर माँ बाप का है। और इंसान आमतौर पर यह तकादा करता है कि मेरी औलाद मेरे हुकूक पहचाने और इसको अदा करे। एक उस्ताद, टीचर, मास्टर अपने विद्यार्थी, स्टूडेंट और शागिर्दों से यही मुतालबा करता है कि मेरा शागिर्द मेरे हक की रियायत करे और मेरा हक अदा करे, मेरी इज्जत बजा लाए, मेरी कदर करे, मेरी तारीफ करे। माँ बाप को भी औलाद से यही उम्मीद होती है। लेकिन तमाम तर रिश्तों में अल्लाह रसूल के बाद सबसे पाकीज़ा रिश्ता, जिस रिश्ते की कदर और मंजिलत दुनिया आखिरत में होती है, वह माँ बाप और औलाद का रिश्ता है। ऐसा पाकीज़ा रिश्ता है। मैंने आपकी खिदमत में आने से कुछ ही लम्हात पहले मैंने एक नई इल्मी बात पढ़ी कि औलाद की जिंदगी का हर सांस माँ बाप के लिए बुलंदी दर्जात का बाइस है, हर अमल नहीं। औलाद की जिंदगी का हर सांस माँ बाप की कदर और मंजिलत को बढ़ाता है। कितना प्यारा रिश्ता है, और इस रिश्ते से पाकीज़ा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। यकीनन अल्लाह का रिश्ता मखलूक के साथ और मखलूक का रिश्ता खालिक के साथ सबसे मजबूत रिश्ता है। और अल्लाह की मारिफत के बाद जो बंदा अपने रब को न पहचाने वो किसी को न पहचाने, और अल्लाह की मारिफत के बाद सबसे ज़्यादा पहचान के मुस्तहिक ज़ात, कुल कायनात का खुलासा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बुनियादी हक तो अल्लाह का है, और अल्लाह के बाद बुनियादी हुकूक माँ बाप रसूलुल्लाह के हैं, और रसूलुल्लाह के बाद बुनियादी हुकूक जो है माँ बाप के हैं। इस पर तो सैर हासिल बहस होती है,
لیکن آج مجھے ماں باپ پر اولاد کے 10 حقوق ہیں. ہم ماں باپ ہیں، اپنی اولاد کے ہم پر 10 حق ہیں. ان 10 حقوق کی ادائیگی کے بعد انشاءاللہ العزیز وہ دکھی ماں باپ جو اپنی اولاد سے پریشان ہے، اگر ان 10 حق کی رعایت کرے ماں باپ اولاد کی تربیت کے بابت، تو کبھی ماں باپ اولاد سے دکھی نہیں ہو سکتے. عام طور پر انسان اجانتا کی وجہ سے کچھ بھولیں کر لیتا ہے اور کچھ بھولیں جان بوجھ کر کرتا ہے. اجانتا کی بھولوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جان بوجھ کر بھول یہ گناہ ہوتا ہے. اور اجانتا کی بھول اس کو نسیان کہتے ہیں. اسلام میں خطا کے بھی درجات ہیں. رفعت عن امتی الخطأ والنسیان. ایک انسان انجام سے ناواقف ہے، کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، یہ خطا ہے، یہ نسیان ہے، یہ معاف ہے. ایک آدمی انجام سے واقف ہو کر کے گناہ کرتا ہے، یہ ذنب ہے، یہ قابل جو ہے اخذ و گیر گناہ ہے اور اس پر مواخذہ ہوتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک کو کہتے ہیں خطا، ایک کو کہتے ہیں نسیان، ایک کو کہتے ہیں ذنب. اس میں خطا اور نسیان نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ذنب آدمی اپنے اختیار سے انجام کو جان کر جو گناہ کرتا ہے اس پر اللہ کے یہاں گرفت اور پکڑ ہوتی ہے. ماں باپ کا رشتہ اولاد کے حق میں بہت پاکیزہ ہے. قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حسن سلوکی کی تاکید دی ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. یہ حقوق بیان کی. اسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. بڑے پیارے انداز میں اللہ نے حقوق کا جہاں نظام رکھا قرآن میں اس کو سمجھایا ہے. لیکن بحیثیت ماں باپ ہم پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ آج ان حقوق کی طرف توجہ نہ ہونے کے نتیجے میں ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے. کتنے ماں باپ ہیں جن کو اولاد سے خطرناک درجے کی شکایت ہے اور زندگی معاشرے میں ایک اجیرن بن چکا ہے. حالانکہ اولاد کے پیچھے انسان محنت کرنے میں اپنے آپ کو پورا ختم کر دیتا ہے. اس کی شادی کے بعد سے لے کر اس کی زبان پر ایک ہی رٹ اولاد 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 اولاد. اس کی زندگی کا سارا عیش اولاد کے پیچھے تباہ برباد کر دیتا ہے. اس کی زندگی کا سارا سکون اولاد کے پیچھے ختم کر دیتا ہے. انسان کی یہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری اولاد سکھ کی زندگی گزارے، کسی کے محتاج نہ رہے، اور اپنی زندگی میں ان کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کرتا ہے جو اس کی طاقت سے باہر بھی. لیکن بنیادی حقوق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق اولاد کے بابت جہاں انسان کی توجہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد میں لڑکا یا لڑکی اس کے لیے بہترین دیندار رشتے کی تلاش. یہاں سے حقوق شروع ہوتے ہیں. پہلا حق یہ ہے اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے نیک دیندار پرہیزگار لڑکا، اور اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے حیا، عفت، پاک دامن اور
नेक खातून का इंतखाब। इसीलिए सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेटी की खुशकिस्मती की 4 अलामतें। खुशकिस्मत बेटी में 4 निशानियां होती हैं। उसके चेहरे में हया होती है, उसके दिल में नेकी होती है, उसके हाथ में काम होता है। खुशकिस्मत बेटी की ये अलामत है। उसके चेहरे में हया हो, उसके दिल में नेकी हो, उसके हाथ में काम हो, ये बेटी खुशकिस्मत होती है। और बेटे में खुशकिस्मती की 5 निशानियां हैं। जिक्र करने वाली जुबान हो, शुक्र करने वाला दिल हो, अल्लाह के अहकामात की अदायगी में मशक्क़त झेलने वाला बदन हो, फरमाबरदार बीवी हो और वतन की रोज़ी हो। जिस इंसान को ये 5 चीज़ें मिल गई वो अपने आप को नसीबदार समझे, लेकिन इंसान अपने आप को नसीबदार नहीं समझता। वो तो कारून की तरह खजाने को नसीबा समझता है और तो फिरौन की तरह मनसब को नसीबा समझता है। वो तो ज़मीन और जायदाद की फरावादी को नसीबा समझता है। इसलिए कि दुनिया नामज इसका है, ज़ीनतुन व तफाखुरुन फिल औलादी वल अमवाल। इंसान समझता ही इसी को है। इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनल औलादी वल अमवाल। ये इंसान की ज़िंदगी का खुलासा है। बचपन, खेल और खिलौने, फिर होशियारी जब आ जाती है तो लाह व लाभ में, फिर जब बड़ा हो जाता है तो तफाखुर में, फिर जब अल्लाह ताला और ज़िंदगी दे देते हैं तो मार और औलाद की ज़्यादती। ये इंसान की अल्लाह ताला ने अंदर का हकीकत बयान कुरान में की। बचपन खेल में गुजरता है। फितरी तौर पर बच्चे की तबीयत खेल की तरफ माइल होती है और उसको खिलौने से बड़ी मोहब्बत होती है। जवान खिलौने में नहीं रहता, उसको खिलौने से मोहब्बत नहीं होती। ये इंसान की फितरत कुरान बयान करता है। इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन। बचपना, खेल, तमाशा। ज़ीनतुन व तफाखुरुन। जवानी में इंसान खूबसूरती के पीछे, खुशआइशी के पीछे, एक दूसरे पर फख्र मुबाहत पर गुजारता है। और फिर जब अल्लाह सलाहियत देता है तो माल और औलाद की कसरत, और इस पर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म होती है। पहला बुनियादी हक औलाद के बाबत ये है कि उसके लिए अगर बेटी है तो नेक दीनदार परहेज़गार लड़का पसंद किया जाए, और नेक दीनदार परहेज़गार लड़के की 5 निशानियां हैं। बहुत तफसील से बात आप समझे। उसकी ज़ुबान पर जिक्र हो, लेकिन हर वक्त ज़ुबान पर जिक्र ये आसान चीज़ नहीं है। आदमी की जब दाढ़ी के काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो इंसान पर जिक्र के आसार नुमाया होते हैं। जवान कितनी भी कोशिश करे कि बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाऊं, लेकिन भूल जाएगा। कोशिश करता है, मश्क करता है, इसलिए जमात में निकलता है, इसलिए खानका में जाता है। बच्चा होता है तो मदरसे में सीखता है और उसकी अमली मश्क कराई जाती है। हर 3 टाइम पर हाल में बिठा करके दुआ पढ़ाई जाती है, उसको मुज़ाकरा करवाया जाता है, बिस्मिल्लाह माअल बरकतिल्लाह। अगर ये मुज़ाकरा ना हो तो वो खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाता है। 7 साल 9 साल एक अमली मश्क, लेकिन इसके बावजूद भी अमल छूट जाता है। जब माहौल ख़त्म हो जाता है तो अमल छूट जाता है। तरबियत, इसको केड़ौड़ी कहते हैं। इंसान के बनने की राहें, शरीयत के मिजाज पर इंसान की तरबियत हो जाए तो इंसान कभी बिगड़ नहीं सकता। बुनियादी चीज़ उसकी ज़ुबान में जिक्र हो, उसके दिल में नेकी हो यानी शुक्र हो, अल्लाह के अहकामात की अदायगी में मशक्क़त झेलने वाला बदन हो, नेक फरमा बरदार बीवी हो और वतन की रोज़ी हो तो आदमी को कुछ भी घटता नहीं है। ये नसीबदार है। बेटी, उसके चेहरे में हया हो, पराए मर्द को देखा
बल्कि गैर मुस्लिम खातून को देख कर भी जो उसके वो खाइन है, ये मोमिन है, उसमें खयानत का जज्बा होता है, इसमें अमानतदारी है, फौरन अपने चेहरे का पर्दा करेगी। कैसी ही बेटी है, जब भी अजनबी आदमी को देख लिया, अचानक ही की निगाह पड़ गई, फौरन अपना चेहरा छुपाएगी, इसलिए कि चेहरा ही इंसान के लिए चुगलखोर है। चेहरे से ही इंसान के अंदर के हालात आश्कारा होते हैं और इंसान का जाहिर भी और इंसान का बातिन भी नुमाया होता है। आरिसे के सामने खड़े रह जाओ, क्या क्या इसलाह चेहरे में है वो फौरन बताता है। इसी तरह इंसान का चेहरा इंसान के दुख दर्द और उसकी राहत का लिए चुगलखोर होता है। तो चेहरे में हया हो, दिल में नेकी होनी चाहिए, हाथ में काम होना चाहिए। अगर बेटी कामचोर है तो माँ उसको तरबियत करेगी और उसकी निगहदाश्त रखेगी और उसको काम की आदत दिलवाएगी। तरबियत निज़ाम बेटी से काबू में आता है। तो पहला बुनियादी हक ये है कि लड़का या लड़की इसके निकाह में इंतखाब जो करे, अगर लड़का लड़की वाले हैं तो लड़के का इंतखाब करना है तो नेक दीनदार लड़का मुंतखब करे, और लड़के वाले भी नेक दीनदार बाहया इफ़्फ़त और पाक दामन बेटी का इंतखाब करे। ये पहला बुनियादी हक है। यहाँ से हुकूक शुरू होते हैं और इसमें हम ज़रा बराबर तवज्जो नहीं देते। इसीलिए सरकार ने फरमाया तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। हदीस में ये नहीं है कि निकाह चार बुनियादों की वजह से किया जाए, बल्कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि इंसानों की फितरत ये है कि चार बुनियादों पर निकाह करता है। ले मालिहा, माल दिखता है। बेटी का रिश्ता आया तो बेटी के माँ बाप ये समझते हैं कि लड़का करता क्या है, उसके पास बैंक बैलेंस, उसके पास ज़मीन और जायदाद, उसके पास नौकरी, रोज़ाना कितना कमाता है। ले मालिहा वली जमालिहा, देखावड़ा है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं। ले जमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा, खानदान कैसा है। वली दीनिहा, और चौथे नंबर में दीनदार है कि नहीं। ये इंसानों की फितरत है जिसको शरीयत बयान करती है। वरना अल्लाह का पैगंबर ये नहीं फरमाता है कि निकाह में चार चीज़ें देखो, माल देखो, जमाल देखो, हसब खानदान देखो और जो है उसका माल देखो, ये नहीं, दीन देखो। बल्कि ये इंसानों की फितरत है कि निकाह में आम तौर पर इंसान ये चीज़ें देखते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ नस्ल औरत से चलती है, नसब बाप से चलता है। इसीलिए औलाद के नाम के साथ बाप का नाम होता है, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के। इनका कोई बाप नहीं, इसलिए ईसा इब्न मरियम और बगैर बाप के पैदा हुआ। आदम का कोई बाप नहीं, आदम की कोई माँ नहीं, तो आदम के नाम के साथ बाप और माँ का नहीं है। हव्वा का कोई बाप नहीं, हव्वा की कोई माँ नहीं, इसलिए उनके साथ माँ और बाप का नाम नहीं है। बाकी दुनिया में तवालुद और तनासुल के ज़रिए से औलाद की नस्ल और नसब बाप से साबित होता है और नस्ल माँ से चला करती है। बस यही इस्लाम का ज़ाब्ता है। इसीलिए औलाद में खुदा नखास्ता निकाह के बाद औलाद है और शादी हो गई तो अब नस्ल तो माँ से चलेगी, नसब बाप से चलता है। अब जवान बेटी है, एक दो बच्चे हैं, बच्चों में बेटी भी है, बेटा भी है या बेटी है, तो माँ तरबियत करती है। इसलिए कि बाप बेटी की तरबियत नहीं कर सकता। तो इस्लाम ने ज़ाब्ता बयान किया कि यह औरत या तो तलाक की वजह से, यह औरत या तो इद्दत वफात की वजह से अपने छोटे बच्चों की तरबियत करेगी। निकाह की इद्दत पूरी होने के बाद या तलाक वफात की इद्दत पूरी होने के बाद अगर निकाह जदीद करना चाहती है, दूसरा निकाह, तो उसको रोका नहीं जाएगा इद्दत के बाद। लेकिन अगर उसकी परवरिश में बच्ची है
तो या वो गैर महरम से निकाह कर ले तो उस बेटी की नानी के हवाले ये की जाएगी, उसकी खाला के हवाले की जाएगी। लेकिन जब बच्ची बालिगा हो गई या इस औरत ने गैर महरम मर्द के साथ निकाह कर लिया तो अब वो मर्द इनके हक में अजनबी बन गया, लिहाजा अब इसकी तरबियत इसके असबा करेंगे। कैसा पाकीदा इस्लाम का निज़ाम। नसब बाप से चला करता है, नस्ल माँ से चला करती है। तो बुनियादी चीज़ दीनदार लड़के लड़की का इंतखाब, ये पहला हक है माँ और बाप पर औलाद के बाबत। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलवा और जलाल अजीब अंदाज का था। लेकिन सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा मोहतात और सादा आदमी भी कोई नहीं। 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत हासिल थी, 22.5 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करता था। लेकिन रातों को गश्त करता था, अपनी पुश्तों पर अनाज उठा करके लोगों के घरों में पहुंचाता था। और वो सैयदना फारूक आज़म जब 10 साल खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22.5 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर हुकूमत करने वाला। लेकिन बेटे अब्दुल्लाह का निकाह जब एक औरत से हुआ और थोड़ी सुस्ती महसूस हुई तो सैयदना फारूक आज़म ने अपने बेटे की भी खबर बहुत अच्छे अंदाज में ली। सादा भी बहुत थे और दीन के अहकामात में मजबूत भी, उसूल के बड़े पाबंद थे, बहुत अक्ल फिरासत के मालिक थे। 2 बड़े कमालात खास तौर पर हर वक्त जुबान पर हक जारी रहता था, इन्नल्लाह वदा अल हक अला लिसान उमर। और सोच बहुत ऊंची थी सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस मुसलमान को ये चीज़ें मिले वो अल्लाह की नेमत समझे और उसकी कदरदानी करे और उम्मत को फ़ायदा पहुँचाए। ये इल्म इंसान सीखने के बाद इसको अपने सीने में महफूज रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह इल्म सीखने के बाद उसकी इशाअत से इल्म की इशाअत होती है, इल्म बाकी रहता है। एक बाप ने अपने इंतहाई नाफरमान बेटे की दुख के हालत में शिकायत की। नोटिस गई, अर्जी गई बाप की, मेरा बेटा बड़ा नाफरमान है। अंदाज़ा लगाओ सैयदना फारूक आज़म के दौर में, अभी तो अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए है, उसको 3 साल हुए हैं या 4 साल 5 साल, अगर कुछ देर के बाद हो तो शिकायत हो रही है एक बाप की जो अपने बेटे से दुखी। बाप का दुख दर्शाता है, बाप दुख दर्शाता है अपने बेटे का कि मैं मेरे बेटे से बहुत दुखी हूँ। खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे बेटे की इस्लाह कीजिए और मैं बाप होने के नाते से मेरा हक मुझे दिलवा दीजिए। अब जब अर्जी गई सैयदना फारूक आज़म की हुकूमत में उनके यहाँ, तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को तलब किया। दुखी बाप की फरियाद पर बेटे को तलब किया। बहुत लंबा वाक़या है, इसमें से एक बात मैं जिक्र करूँगा। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में किसी के खिलाफ का जो मुकदमा हो तो हाजिरी मामूली चीज़ नहीं, थोड़ी सज़ा होती थी, एज पेज कुछ भी चलता नहीं था। लेकिन बेटा बड़ा मुतमईन था, बहुत हिम्मत के साथ सैयदना फारूक आज़म के दरबार में पहुंचता है। हालांकि बाप की तरफ से इल्ज़ाम है कि इसने मुझे बहुत दुखी करके रखा है और आप इनकी खबर लो। तो सैयदना फारूक आज़म के दरबार में जब सुनवाई होती है तो सैयदना फारूक, इसलिए कि इस्लाम का ज़ाब्ता ये है जानिबैन से तपास करनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कोई बुरी खबर आई, ये बुरी खबर है, दुखी बाप अपना दुखड़ा
अमीरुल मोमिनीन के दरबार में पेश करता है, ये दुख की खबर है, फतबय्यनु, लेकिन खूब 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 तहकीक करो। अब तहकीक हो रही कि तेरे बाप का तेरे खिलाफ मुकदमा है और तेरे बाबत ये शिकायत दर्ज हुई है कि तू तेरे बाप का बड़ा नाफरमान है, तेरे बाप को अजियत पहुंचाता है और तेरे बाप को तुझसे दुख पहुंचा है और तू अपने बाप के हुकूक की अदायगी नहीं करता। तो वो बेटा भी बेटा था। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, इस्लाम में हुकूक जानिबिन से हैं, दोनों तरफ से हक है। औलाद के हक माँ बाप पर है, तो माँ बाप के भी कुछ हुकूक औलाद के बाबत है कि नहीं, ये सवाल उसने किया। यकीनन माँ बाप के हुकूक हम पर है, लेकिन क्या हमारे भी कोई हक हमारे माँ बाप पर है कि नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे बाप की बुनियादी भूल यह है कि मेरे बाप ने जिस औरत से मेरा निकाह कराया है वह औरत ईसाई है। पहली बुनियादी बात कि मेरे बाप ने जिस औरत से मेरा निकाह कराया है वह औरत ईसाई है। फिर लंबा वाक़या है। खाली पहली बात, जानिबेन से पहले अच्छे रिश्ते का इंतखाब ये बुनियादी हक है माँ बाप का औलाद के बाबत, और इसमें माँ बाप को बहुत मोहतात रहना चाहिए, यानी बहुत एहतियात करना चाहिए। इससे ख़ानदान बनने वाला है, इससे नस्ल चलने वाली है, या औलाद की माँ शुमार होने वाली है। पहला बुनियादी हक ये। फिर इसके बाद दूसरा हक क्या है? दूसरा हक, निकाह की बरकत से जब अल्लाह औलाद अता फरमाए, औलाद में बच्चा या बच्ची पैदा हो, उस वक्त इसकी सफाई या गुस्ल के कायम मुकाम, हॉस्पिटल में या घर में डिलीवरी हुई बच्चा के या बच्ची, अब उसकी सफाई गुस्ल यानी उसकी सफाई जो उसकी उम्र और उसकी एज के लायक है, उसकी सफाई या गुस्ल करके, अगर लड़का है तो उसको सफ़ेद कपड़े में और लड़की है तो उसको रंगीन कपड़े में कवर करना चाहिए। ये बुनियादी चीज़। अब आप सोचेंगे कि एक अभी तो दुनिया में आया है, यह उसका पहला दिन है, और उस पहले दिन में इस्लाम की नीति देखो। ये बच्चा जो है उसको बरहीना न रखा जाए, इसको नंगा न रखा जाए, इसको कपड़े से ढांका जाए, और वो कपड़ा ढांपने वाला सफ़ेद हो। आका ने तो फरमाया, अलबिसुल बयाद व कफ़िनु फ़ीहा मौताकुम, तुम सफ़ेद कपड़े पहनो और सफ़ेद कपड़े में अपने मरने वालों को कफन दो। इसलिए कि सफ़ेद कपड़ा जब तक मैला नहीं होता तब तक वो तस्बीह पढ़ता है, और जब पैदाइश की इत्तिला मिल गई तो माँ या बाप या रिश्तेदार पढ़ेंगे, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये बच्चा नजर बद से बच गया। ये इस्लाम की बुनियादी टॉपिक की तालीम है। माँ बाप को इस पर अमल दरामद होना है। सफ़ेद कपड़ा उस पर ओढ़ दे अगर लड़का है, लड़की है तो उसको रंगीन कपड़ा, इसलिए कि औरतों के लिए सफ़ेद कपड़ा तमाम हालात में मकरूह है, और मकरूह यानी मना है, मना यानी पसंदीदा नहीं है। औरत के लिए रंगीन कपड़ा पसंदीदा है। देखो, मकरूह में भी हराम भी हुआ करता है, लेकिन मकरूह का यहाँ मतलब पसंदीदा नहीं है। तमाम हालात में औरत के लिए सफ़ेद कपड़ा पसंदीदा नहीं है। उसके लिए पसंदीदा कपड़ा रंगीन कपड़ा है, तो उसको रंगीन कपड़े के अंदर बांध दे, और अगर लड़का है तो उसको सफ़ेद कपड़े के अंदर बांध दे। फिर उसके बाद उसके दाहिने कान में अजान कही जाए और उसके बाएं कान के अंदर तकबीर कही जाए। ये बुनियादी हक। उसके दाहिने कान में अजान कही जाए, उसके बाएं कान के अंदर तकबीर कही जाए। ये बुनियादी हक है औलाद का उसके माँ बाप पर। आमतौर पर इस सिलसिले के अंदर लोग बहुत कोताही करते हैं। ये पैदाइश के बाद, सफाई के बाद तीसरा अमल, तीसरा हक
اس کے کان میں اذان اور بائیں کان کے اندر تکبیر کہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح ایک دین کے بچے کے کان میں اذان اور تکبیر کا کیا مطلب؟ یہ توحید اس کے دل کے اندر راسخ کی جاتی ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی خالق اور مالک ہیں، اسی کا میں بندہ ہوں اور وہی مستحق کی عبادت ہے۔ اللہ کی توحید اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے دل کے اندر سینچائی کی جاتی ہے۔ اذان کے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب اذان کے بعد بچے کا دودھ ہوتا ہے، اور ماں کی دودھ سے زیادہ پوشٹک اولاد کے لیے کوئی خوراک نہیں۔ اس لیے مذہب اسلام میں فقہی نقطۂ نظر سے جب اولاد ہو جائے تو اب عورت کا خرچہ ڈبل کر دینا ہے۔ پہلے عورت کو 5,000 دیتے تھے، اب 10,000 دیں گے۔ پہلے 10,000 تھا، اب 20,000 ہو گیا۔ جن گھروں میں خرچے حساب کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس میں کوشش اب 2 گنا خرچ، ایک عورت کی اپنی غذائیت کا اور ایک ہماری اولاد جو اس کی نشو و نما میں ہے اس کی غذائیت کا۔ اس پر آدمی توجہ نہیں دیتا، اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ اس کی 2 گنا خوراک ہو جانی چاہیے اور اس کے خرچے ڈبل ہو جانے چاہیے۔ اور سب سے عمدہ جس نعمت میں برکت کی دعا پیغمبر نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دودھ ہے، لہذا عورت کے لیے لطیف مشروب دودھ کے اندر بھی 2 گنا ہو جانا چاہیے۔ یہ تو شریعت اسلام کا پاکیزہ دستور، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ قرآن کہتا ہے میں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائے گی جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے۔ اس زمانے میں دایاں بھی دودھ پلایا کرتی تھی، لیکن آج کل ہمارے یہاں جیسے مائیں ہی اولاد کو دودھ پلاتی ہیں، ماؤں کو چاہیے اپنی اولاد کے دودھ کے لیے، ماؤں ہی کے لیے اولاد کا دودھ بہتر ہے، اس لیے کہ ماؤں کی توحید کے ساتھ اولاد کی توحید کی سینچائی ہوتی ہے۔ اب لڑکپن میں اس کے احکامات، اس کی صفائی ستھرائی، گندگی سے اس کو پاک صاف رکھنا، یہاں اس کی ترتیب بتا دی۔ پھر کسی نیک دیندار پرہیزگار مرد کے پاس کھجور یا چھوارا یا شہد اس کی تہنیک کروا کر اس بچے کے تالو میں لگائے یا اس بچے کے منہ میں ملائم کر کے لگائے، جس کی وجہ سے اس نیک دل انسان کے تھوک کے اندر اس کے ذکر، اس کی تلاوت اور اس کی نیکی کے اثرات اس بچے کے دل کے اندر پیدا ہو۔ حضرت اسماء سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے، ہجرت سے 27 سال پہلے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوتی ہے، عبداللہ بن زبیر کی ماں ہوتی ہے۔ 100 سال کی عمر پائی تھی۔ سن ہجری 73 کے اندر ان کی وفات ہوئی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ تشریف لے گئے تھے مکہ المکرمہ سے غار ثور، اور پھر غار ثور سے مدینہ المنورہ، تو توشادان باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو حضرت اسماء نے اپنا دوپٹہ چھین کر کے وہ توشادان باندھا تھا۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسماء ذات النطاقین، اے اسماء تیرے ایک دوپٹے کے بدلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تجھے 2 دوپٹے دلوائے گا۔ اتنی بڑی عورت، صحابیہ خاتون، اور بڑی دلیر تھی، بڑی بہادر تھی۔ حجاج ابن یوسف ثقفی کا دور آیا، بخاری کی راویہ بھی ہیں، کتاب العلم میں امام بخاری نے ان سے روایت لی ہے، وہاں ترجمۃ الباب میں محدثین نے لکھا ہے بڑی دلیر تھی، بڑی بہادر تھی۔ حجاج ابن یوسف ثقفی نے جب عبداللہ ابن زبیر کو ظلماً شہید کر دیا، صحابی رسول تھے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ تشریف لے گئے یا مکہ تشریف لے گئے اور مکہ المکرمہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور سیدنا حسین ابن علی کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کو حجاج نے ظلماً شہید کر دیا۔
माँ अस्मा है बिनते अबी बकर, पता चला है कि बेटा शहीद कर दिया गया। हज्जाज ने सर नेज़े पर चढ़ा दिया था। हजरत अस्मा को इत्तला हुई। माँ जवान बेटे की नाश पर हाजिर होती है और देखा कि सर नेज़े पर चढ़ा हुआ है। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ओहो, अब तक इससे सवार को सवारी से उतरने का मौका नहीं आया है। ओहो, अब तक इससे सवार को सवारी से नीचे उतरने का मौका नहीं आया है। यानी मेरे बेटे अब्दुल्ला की गर्दन काट कर उसको तलवार पर यूं नेज़े पर जो है ऊंची कर दी गई। अब ये गर्दन नीचे उतरने का वक्त अभी तक नहीं आया। बाद में जब हज्जाज को पता चला तो हजरत अस्मा को तलब किया। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज्जाज के तलब करने पर गई नहीं, मना कर दिया। ऐसी दिलेर बहादुर, हालांकि हज्जाज के नाम से लोगों के कलेजे के पित्ते पानी हो जाते थे, लेकिन नहीं गई, वो खुद आया। तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हमने अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि कबीला बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब पैदा होगा, नबूवत का दूसरा दावेदार। वो तो हमने अपने आंखों से देख लिया। ए हज्जाज, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने फरमाते हुए सुना था कि कबीला बनु सकीफ में एक सफ़ाक पैदा होगा, बड़ा खूनरेज़ इंसान, और तुझसे बढ़ कर के सफ़ाक कबीला बनु सफीक में कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसी दिलेर थी, ऐसी बहादुर थी। 100 बरस की उम्र हुई, अक्ल में कुछ भी फुतूर पैदा नहीं हुआ था, एक दांत भी गिरा नहीं था, और हवास में भी कोई फर्क पैदा नहीं हुआ था। अल्लाह ताला ये नेमतें अता फरमाते हैं। बड़ी उम्र में आदमी के अक्ल हवास ठिकाने रहे, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हमारी हजिया ने अल्लाह की रहमत के आगोश में तशरीफ़ ले गई। कईयों के लिए 80,000 की तस्बीह ज़िंदगी में वक़फ़ कर गई, अपने लिए और दूसरों के लिए। इंसान की ज़िंदगी दरसे इबरत है। माँ माँ होती है, औरत के दिल में एक शफ़क़त का अजीब दाहिया होता है, एक बहुत बड़ी रहम करम होती है उसके दिल में, अजीब अंदाज की। और औलाद कितने ही डिंगे मारे, वो समझता है कि मैं अपनी ताकत के बलबोटे पर कमा रहा हूँ, मैं अपनी ताकत के बलबोटे पर इज़्ज़तें हासिल कर रहा हूँ, मैं अपनी ताकत के बलबोटे पर इल्मी मैदान मार रहा हूँ, ये वो। लेकिन उसके पीछे एक नेक खातून माँ की दुआओं का बड़ा असर होता है। इसीलिए एक बुजुर्ग फुतूहात की इंतहा को पहुँच चुके थे। मशरिक, मगरिब, शमाल, जुनूब, पूरब, पश्चिम, जिधर चाहते उधर फुतूहात के ढेर लगा देते। जब माँ का इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, खबरदार, बड़ी बड़ी बातें बयान करना छोड़ देना। अब ये सारी चीज़ें फुतूहात ख़त्म हो गई तो वो बहुत बारगाह की खुदाबंदी में इज्जो नियाज के साथ मुतवज्जो हुए। इसलिए कि नेकी की राहें जब इंसान के लिए ख़त्म हो जाए तो इंसान क्या करेगा? अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुए, अल्लाह वो कौन सा गुनाह है मुझे बता दीजिए जिससे मैं तौबा कर लूँ और मेरी फुतूहात वापस आ जाए। फरमाया, तेरा कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता जिस वक्त तू घर से निकलता था किसी सफ़र के लिए, तेरी माँ वुज़ू करके मुसल्ले पर बैठ जाया करती थी और तेरे सफ़र की कामयाबी की दुआएं किया करती थी। आज वो दुआ का दरवाज़ा बंद हो गए। इसलिए हदीस शरीफ में आता है, जिसके माँ और बाप दोनों हयात हो तो सीधे जन्नत से 2 दरवाजे खुलते हैं और उस घर में पहुँचते हैं, और जिसका एक ख़ास तौर पर एक दरवाज़ा उसके लिए खुलता है। मुझे किसी ने सवाल किया कि मौलवी साहब आपने ये हदीस बयान की और जिसके माँ और बाप दोनों न हो, मैंने कहा उसके लिए जन्नत का कोई दरवाज़ा खोला नहीं जाता। फिर कहा कैसे? ये तो एक्स्ट्रा दरवाजे हैं, ये तो एक्स्ट्रा दरवाजे हैं। नेक अमाल पर जन्नत अलग चीज़ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा दरवाजे हैं। जब उसके साथ उसने सुलूक किया जाता है तो वो दरवाजे बाकी रहते हैं। जब उसके साथ बदसलूकी की जाती है तो बद्दुआओं की सूरत में ये दरवाजे उसके लिए इंसान की किस्मत को ख़त्म कर देते हैं। ये चीज़ है। तो तीसरा हक
तहनीक की जाए। चौथा हक ये है कि उसको 2 साल या 2.5 साल दूध पिलाने की मुद्दत है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक 2.5 साल तक दूध पिलाया जा सकता है, लिहाजा माँ अपनी औलाद को दूध पिलाए। अब दूध पिलाने की तरतीब इस्लाम में ये है, बावजू दूध पिलाए। बाद लोग ये भी समझते हैं कि दूध पिलाने की वजह से वज़ू टूट जाता है तो औरतें वापस वज़ू करती है, ये गलत है। दूध पिलाने से वज़ू टूटता नहीं है। 2 वजह से वज़ू टूटेगा, पेशाब या पाखाने के रास्ते से कोई चीज़ निकली उससे वज़ू टूटता है, दूध पिलाने से वज़ू टूटता नहीं है। इसलिए माओं को चाहिए कि अपने औलादों को बावज़ू दूध पिलाए। सैयदना गौसुल आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, पीरान पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा माजिदा ने कभी भी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बगैर वज़ू के दूध नहीं पिलाया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह दिल्ली में है, मैं वहाँ हो आया हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके वालिदा माजिदा ने जिस वक्त वो पेट में थे बहुत कुरान पढ़ती थी, बहुत कुरान पढ़ती थी। और जिस वक्त वो लोरियां देती थी अपने बच्चे को जिक्र, तिलावत और कुरान के साथ, तो फरमाते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिस वक्त माँ के पेट से पैदा हुए 14 पारे कुरान के हाफिज थे, 14 पारे कुरान के हिफ्ज हो चुके थे। जब वो बोलने शुरू किया तो 14 पारे पूरे कुरान के हाफिज थे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, पीरान पीर, बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह भी वो माँ की कसरत तिलावत की वजह से 10 पारे के करीब कुरान करीम वो हिफ्ज कर लिया था। इसको तरबियत कहते हैं। तो दूध पिलाने के ज़माने में बावजूद दूध पिलाए, कोई मुश्तबे खुराक पेट में न जाए उसका ख्याल रखे, इसलिए कि माँ के दूध से औलाद की परवरिश होती है। और मुश्तबे खुराक जब पेट में जाता है तो उससे इंसान की बॉडी पर असर पड़ता है, और जब हलाल खुराक आदमी खाता है तो उसे नेकी के जज्बात पैदा होते हैं और हराम ग़िज़ा खाने पर गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं। इसीलिए अकाबिर असलाफ फौरन अपने खाने की तरफ नज़र डाल देते कि खाने में कोई ऐसी चीज़ नहीं। इसलिए हदीस में फरमाया अय्युमा लहमिन गुज़िय बिल हराम अलयक बिन नार, इंसान के जिस्म की गोन सी बोटी, इंसान के जिस्म की जौन सी बोटी हराम माल से परवरिश पाई है वो जहन्नम की आग ही में जलने के लायक है। रिज़्क़ हलाल का बड़ा दखल है इंसान की तरक्की में। रज़ाअत की मुद्दत में माएँ अपनी औलाद को इस्लामी लोरियाँ गाए, यानी कलमा पढ़े, 4 कुल पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े और इस पर दम करे बचपन के ज़माने में। बल्कि जिस वक्त हमल करार पा जाए उसके बाद से हर नाजेबा हरकत से मर्द और औरत को बचना है, अपने गुफ्तार की हिफाजत करनी है, अपने किरदार की हिफाजत करनी है और सत्र का लिहाज करना है। वो माँ बाप जो औलाद पेट में परवरिश पाने के ज़माने में जिन चीज़ों की शरीयत में छूट है उसके बावजूद बेहयाई नहीं बरतते हैं तो कभी औलाद भी बेहया नहीं होती। कुछ औलाद की बेहयाइयों पर माँ बाप की बेहयाई असर करती है। फिर जब बच्चा बोलने सीखे तो कोशिश करे उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ये कलीमे पढ़ाएं। हमारा तकरीबन 1.5 साल के बच्चे से अनुभव ये है कि वो पूरी सूरह फातिहा आप पढ़ाएं तो बच्चा पढ़ लेता है। प्रैक्टिकल हमने किया है, आप पढ़ाएं अल्हम्दु वो पढ़ेगा, अपनी मासूम आवाज़ के अंदर वो पढ़ेगा। अभी बच्चा जिस वक्त बोलने सीखे उसी वक्त से उसको कलमा सिखाएं। मोबाइल हाथ में न दे, मोबाइल के ज़रिए से अपने बच्चों को खुश न करें, बल्कि कोशिश इस बात की करें कि कलमे और लोरियों में वो चीज़ गाएं
जो कुरान और हदीस में है, यानी 4 कुल, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, इसको ये पढ़े और ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए लोरियां दे उसको, यानी झोड़ी के अंदर उसको झूले दे, तो इससे औलाद फौरन वो कलीमा अक्ज़ करेगी। फिर इसके बाद जब औलाद 7 साल की हो जाए तो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म करे, और जब औलाद 10 साल की हो जाए तो नमाज न पढ़ने पर उसको मारे। मुरू औलादकुम बहुम अबना सबअ सिनीन, जब 7 साल के हों तो इनको हुक्म करे नमाज पढ़े, बच्ची से घर में नमाज पढ़वाए। बच्चे को जो है अगर ना समझ है तो घर में, और अगर मस्जिद की सफाई सुथराई और मस्जिद के आदाब और नमाजी और नमाज का एहतराम मलहूज रख सकता है तो मस्जिद में भेजे। अब ये फजीलत लोग बयान कर देते हैं कि 7 बरस का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज पढ़ाए, और नमाज तो मर्द मस्जिद में पढ़ता है तो इसको भी साथ में लेकर चलता है। अब ये बच्चा नासमझ है, थोड़ी देर में उसका शौक पूरा हो जाता है, और लंबी नमाज में बेचारा खुद नमाज पढ़ नहीं सकता, अभी सीखी नहीं है उसने, और बचपने की वजह से खुद की भी नमाज खराब और दूसरे की भी नमाज खराब। 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज पढ़ने की तालीम देनी है घर में। मदरसे में भी 7 साल की उम्र में बच्चे को नमाज प्रैक्टिकल सिखाते हैं, और 10 साल की उम्र हो गई अब वो मस्जिद जाएगा, उसको हुक्म करे यसुफुर रिजाल सुम्मा सिबियान सुम्मा निसा सुम्मा खनासा। बेटा मर्दों की सफ़ें आगे रहती है, जब वो सफ़ें पूरी हो जाए उसके बाद बच्चों की सफ़ें लगा करती है, तो मर्दों की सफ़ों में बच्चों को खड़ा न रखा जाए, बल्कि यसुफुर रिजाल, मर्द लोगों की सफ़ें अलग, बच्चों की सफ़ें अलग होती है। ये तरबियत का इस्लाम में निज़ाम है। इस तरह औलाद की तरबियत की जाए। फिर जब बच्चा 7 साल का या 10 साल का हो गया तो उसको मदरसे में भेजा जाए और उसको कुरान का इल्म सिखाया जाए, इसको हाफिज, आलिम, दीन का दाई, इस्लाम का शहदाई फिदाई बनाए। स्कूल की तालीम भी ज़रूरी है, वो बक़दर ज़रूरत। दीन की तालीम असल के दर्जे में है और दुनिया की तालीम ज़रूरत के दर्जे में है। बस उससे इंसानी ज़रूरत जिससे पूरी हो जाए इतनी दुनियावी तालीम उसको दें। दीन असल के दर्जे की चीज़ है, इसलिए असल तालीम दीन की उसको सिखाई जाए, जिसमें उनको मुकम्मल हाफिज कुरान, आलिम या कारी या मुफ्ती या मुज्तहिद या कादी, जस्टिस ऑफ इस्लाम तक इस्लामी अहकामात और इस्लामी तालीमात से उसको रूशनास कराए। ये बाप का औलाद पर बुनियादी हक है। इन हुकूक की तरफ आमतौर पर लोगों की तवज्जो नहीं होती। सूरह लुकमान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत लुकमान हकीम की जिन वसाया और नसाया को जिक्र किया है, उसमें इन्हीं बातों की वही क़ाल लुकमान लिब्निही व हुवा यईदु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम व वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैका इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। इसके साथ साथ माओं को चाहिए अपनी औलाद को कोई बद्दुआ न दे, नाज़ेबा हरकत भी न करे, कोई बद्दुआ भी न दे। माँ की बद्दुआ औलाद के लिए इंतहाई खतरनाक चीज़ है और वो फौरन कबूल हो जाती है, उसमें ज़रा बराबर देर नहीं लगती। हमारे यहाँ जब औलाद माओं को बहुत परेशान करती है तो ज़ुबान ज़द जुमला है वांजिया, ये निकल लग जाता है, लेकिन उसको अंजाम का इल्म नहीं है। ये लफ्ज़ निकालने वाली माँ को अंजाम का इल्म नहीं। कुरान में खाली यही एक गाली दी गई आका को, तो उसका फजीता आज तक कुरान में है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। नबी जी के यहाँ बेटी पहले पैदा हुई ज़ैनब, फिर रुकैया, उम कुलसूम, फातिमा, 4 बेटियां हों। अब बाद औलाद में बेटी पैदा होती है पहले, तो आदमी के चेहरे खुश तो होता है लेकिन खुशी चेहरे में नहीं होती, वो चाहता है कि लड़का।
اور عجیب عجیب لوگ دھتنگ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن یہ کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکر. اگر پہلی بیٹی ہے تو قرآنی ترتیب سے آئی، اس لیے کہ قرآن میں پہلے بیٹی کو مقدم کیا ہے. اور جس کی 3 بیٹیاں ہو یا 2 بیٹی ہے یا 1 بیٹی ہے، وہ 3 بیٹی کا باپ یا 2 یا 1 کا باپ اس کی تربیت کرے، بچپن میں دین سکھلائے اور جوانی میں دیندار مردوں سے نکاح کرا دے. آقا فرماتے ہیں میں محمد الرسول اللہ اس کو جنت دلانے کا ذمہ دار ہوں. تو بیٹی تو جنت دلوانے کی ذمہ دار بنتی ہے. یہی فضیلت بہن کے حق میں ہے. اگر پہلی بچی آئی تو قرآنی ترتیب سے آئی. اب لوگ کیا کہتے ہیں لڑکا ہونا چاہیے، مانجھیا ملکت نہ بن جائیں، میری ملکت کے وارثدار دوسرے نہ بن جائیں. بھائی اللہ نے تیری ملکت تیرے بھائیوں کے حق میں لکھی ہے تو تجھے کبھی بھی نرینہ اولاد دے گا نہیں. اور جو ہے لڑکیاں عطا کر کے تیرے بھائی کا مقدر نہیں تو تیرے بھائی کو ملے گی. یہ قدرت کا فیصلہ ہے. العبرۃ بالخواتم، اعتبار خاتمے کا ہے. اس لیے آدمی کو خاتمے سے ڈرتے رہنا چاہیے. نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے گی. 24 گھنٹے کی ہر ساعت اور ہر سیکنڈ ایک فرما بردار انسان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا تو خاتمہ سدھر گیا، میرا کیا بنے گا اور میرے خاتمہ کا حال کیا ہوگا. کوئی انسان دیکھ کر نہیں آیا اور کسی کی جاگیر نہیں ہے. کتنا ہی بڑا نمازی دیندار حاجی ہو قاضی ہو، لیکن خاتمے سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے خاتمہ خراب ہو گیا تو انسان کی آخرت برباد ہو گئی. انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے. لیکن دیکھو اولاد میں لڑکی نیکی ہے اور اولاد میں لڑکا نعمت ہے. کیا مطلب؟ اولاد میں لڑکی نیکی ہے. جب تک یہ گھر میں ہے ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں روزانہ فرشتہ نیکی لکھتا ہے. پیدا ہوتے ہی نیکی شروع، اور جب بچی رشتہ ہو کر کے شادی کر کے گھر چھوڑے گی اب نیکی اس کی ختم. دونوں ماں اور باپ کے نامہ اعمال میں فرشتہ نیکی لکھنا بند کر دے گا، لیکن ماں اور باپ کو مقبول حج و عمرے کا ثواب مل جائے گا. اسلام نے بیٹی کو کیا مقام دیا ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں کہ مرد کے برابر ناری کا سنمان اسلام نے نہیں کیا. ان باطل مذہب والوں کو ڈنکے کی چوٹ ہم کہتے ہیں لاؤ تم اپنے گرنتھ لاؤ، اپنی کتابیں لے آؤ مذہبی. کسی ایک مذہب نے بیٹی کی تربیت پر سرگواش باپ کو بنایا ہو؟ کوئی دھرم کہتا نہیں، اسلامت کہتا ہے کہ بیٹی کی تربیت پر باپ جنتی بن جاتا ہے. اسلام میں علاوہ کسی مذہب میں یہ نہیں. پھر بھی کہتے ہیں کہ اسلام سمانتا کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بیٹی کو قید میں رکھ دیا ہے. جب بیٹی کو باہر نکالا مرد کے شانہ بشانہ کھڑی کیا، نتیجتاً 10 لاکھ مسلمان بیٹیاں اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر غیر مسلم بچوں کے ساتھ چلی گئی. اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، اسلام پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام عفت کی تعلیم دیتا ہے. اور قرب قیامت حیا ختم ہو جائے گی. پہلے حیا تھی، ایک آنگڑے میں مسلم غیر مسلم ساتھ میں رہا کرتے تھے، لیکن قسم خدا تعالیٰ کی کبھی وہ ناپاک اور مسموم نگاہ سے کسی ہندو نے مسلمان بہن کو نہیں دیکھا، کسی مسلمان نے ہندو بہن کو نہیں دیکھا. وہ خیالات تک پیدا نہیں ہوئی. ہمارا بھی بچپن گزرا ہے، ہم کو بھی معلوم ہے. ساتھ میں ہی کام کیا کرتے تھے، بچے ساتھ میں کھیلا کرتے تھے، لیکن وہ پاکیزہ دور دیکھا ہے کہ وہ ہوس اور وہ خیالات اور ناپاک منشیات اس کا تصور بھی دماغ میں نہیں. اور آج تو اچانک کی نگاہ بھی محفوظ نہیں. آپ بھی اپنے ساتھ کام کرتے ہیں ہندو مسلم، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں، دادا کی عمر کے یا باپوں کی عمر کے، وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. تو بیٹی قرآنی ترتیب سے آتی ہے. بیٹی بھی اور بیٹا بھی دونوں اللہ کی نعمت ہے. ایک نیکی ہے اور ایک اللہ کی نعمت ہے. اس پر شکر کرنا پڑتا ہے. اگر شکر کرتا ہے تو پھر اس کو جنت ملتی ہے، اور اگر ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. تو اس پر بات چلتی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں
औरत के साथ बदसलूकी की जाती थी। हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को जो वसाए और नसाए की, इन वसाए का बयान कुरान में इस तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, अपने माँ बाप के साथ उसने सलूकी करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ, इनके साथ उफ भी मत करो, इनको झिड़को भी मत, और इनके साथ बदसलूकी मत करो। अब ये जवान हो गए, जब 10 साल के ऊपर की उम्र के हो गए, अब बिस्तर अलग कर दो, कमरा अलग कर दो। जवान भाई बहन भी एक कमरे में नहीं सो सकते, दोनों के कमरे अलग, दोनों के बिस्तर अलग। और अगर एक ही कमरा है, 2 कमरे वाला मकान नहीं है, तो दरमियान में एक पर्दा नस्ब कर दिया जाए और दोनों खलवत में एक साथ कभी भी न रहे। इस्लाम ने कैसी पाकीज़ा तालीम और इस्लाम ने कैसी पाकीज़ा तरबियत की। अब जब उसकी सीखने की उम्र है वो 10 साल से शुरू होती है, इसीलिए मदरसों में 10 साल के बच्चों को लेते हैं। पहले बचपन में तरबियत घर में करें, दिन सिखाएं, फिर उसके बाद मदरसों के हवाले करें। अब आम तौर पर होता है ये कि सारी जिम्मेदारियां मदरसे के हवाले कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम 75% मेहनत घर में करें और 25% मदरसा में मेहनत हो, या 50% मेहनत हम घर में करें और 50% मेहनत मदरसा करे, तो रंग लाएगी ये तहजीब, रंग लाएगा ये तमद्दुन, और इस्लाम अजीब किस्म की तरक्की करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मदरसों में दीन सिखाया जाता है। शैतान दीन से इंसान को पीछे रखने की कोशिश करता है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा कि ये बच्चा दीन का दाई, इस्लाम का शहदाई फिदाई बने। रोज़ाना दर रोज रात के वक्त इबलीस का तख्त बिछता है, इबलीस का तख्त बिछाता है वो। जैसे अल्लाह रहमान ताला अर्श पर जलवा अफरोज होता है, अल्लाह का अर्श, उससे अल्लाह की ज़ात मुस्तगनी है, लेकिन अल्लाह और रहमान अलल अर्श इस्तवा। तो इबलीस अपना तख्त बिछाता है समंदर पर, और रोज़ाना शैतान जमातों से कारगुजारी लेता है। आज तूने क्या किया, आज तूने क्या किया, आज तूने क्या किया। किसी को माँ बाप से औलाद से लड़वा दिया, माँ बाप को औलाद से लड़वा दिया, पड़ोसियों में झगड़ा करवा दिया, ये वो सारी कारगुजारियाँ लेता है। ठीक किया, ठीक किया। एक को कहता है मैंने बहुत बड़ा काम तो नहीं किया, अलबत्ता ऐसा किया कि एक तालिब इल्म या लड़की मदरसे जा रही थी और उसको मदरसे से रोक दिया। तो कहा शाबाश शाबाश, इससे बड़ी शाबाशी किसी को हासिल नहीं। सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो इसने किया है। एक ने कत्ल करवा दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। जिना करवा दिया, कोई बड़ा काम नहीं किया। गिबत करवा दी, कोई बड़ा काम नहीं किया। ठीक है, अपने एतबार से किया, लेकिन मदरसे से रोक दिया तो वो अपने तख्त पर खड़ा होकर के ऐलान करता है और इसको शाबाशी देता है कि इससे बड़ा काम तूने किसी और ने नहीं किया। यह है तालीम का असर। अब अपनी औलाद को मदरसों के अंदर अब सख्ती खत्म, टापली भी नहीं मार सकते। अगरचे हिंदुस्तान की हुकूमत है, इंग्लिस्तान तो है नहीं। इंग्लिस्तान के अंदर तो आंखें चढ़ाकर देख भी नहीं सकते। अगर वो फरियाद कर दे तो भी बाप टीचर को जेल में डाल दे। अब ये हालात सुन करके यहाँ भी अमली प्रैक्टिकल होती है। माएँ अपने बच्चों की सुनती है, पहले तो शिकायत सुननी नहीं चाहिए, सुनती है और फिर उसके बाद बोर खींचती है। इस तरह मदरसों के अंदर बाप अपने बच्चों के बोर खींचते हैं। नतीजतन क्या हो, अब देखे कह दे सुन ले, हम उस्ताद से कह देंगे, मदरसे से कह देंगे, आइंदा इस्लाह हो जाएगी। नहीं, ये तो इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश करने की कोशिश, तालीम से औलाद दूर हो जाती है। अब तो मदरसों में सख्ती नहीं रही, प्यार मोहब्बत के साथ उम्दा खाने खिलाए जाते हैं और अच्छे से अच्छी तरबियत की जाती है और उससे तालीम वजूद में आती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी तवज्जो नहीं। खुसूसन अपनी औलाद में बेटियों को दीन सिखाना बहुत ज़रूरी है।
भले वो डॉक्टर भी बने, भले वो प्रोफेसर भी बने, भले वो इंजीनियर भी बने, लेकिन मर्द के शाना बशाना नहीं। औरत के लिए अलहदा निज़ाम, मर्द के लिए अलहदा निज़ाम। इस्लाम ने तो यहाँ तक तालीम दी कि मर्द अगर किसी मजबूरी में औरत को दीन पढ़ाता है तो भी मोहतात अंदाज के अंदर उसको दीन पढ़ाए, पर्दे में, जिसमें उसकी आवाज़ इसकी आवाज़ और इसका एहसास इसके एहसास से दूर रहे। कितना पाकीदा माशरा इस्लाम ने बनाया। लिहाजा अपने औलाद की तरबियत के सिलसिले में इन हुकूक की निगहदाश्त, इसी के साथ साथ जब इंसान इस आलम दुनिया से आलम आखिरत का सफ़र करे तो उस वक्त सबसे पहला बुनियादी हक ये है उसकी ताज़ियत की जाए, यानी उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत की जाए। तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत पर अमल के 2 क़िरात उसको मिलते हैं। करीबुल मर्द इंसान के पास अच्छा आदमी बैठे और उसको कलमा तलकीन करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बकसरत पढ़ता रहे धीमी आवाज़ में, सुरीले अंदाज में, जिससे उसको उकताहट न हो। इसलिए कि जब इंसान की मौत का वक्त आता है और आलम गैब से फरिश्ते छूटते हैं तो 70,000 फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आते हैं। 70,000 फरिश्ते। अगर नेक हैं तो जन्नती कफन के साथ और बुरा है तो जहन्नमी कफन के साथ। उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है और आलम गैब खुल जाता है। दिखता ही ये दुनिया में है, लेकिन उसकी रूह आलम आखिरत में परवाज़ कर जाती है, यानी आखिरत का मंजर उसकी नज़रों के सामने होता है। कुछ ही देर में उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है। ऊपर से निकालना शुरू करके पैर के अंगूठे पर से ख़त्म कर दिया जाता है और इंसान लाशाए मैयत हो जाता है। उस वक्त कलमा तलकीन किया जाता है। कलमा पढ़ने की निशानियाँ बात मरतबा वो ज़ुबान से पढ़ लेता है, अब खामोश, अब कोई भी बात नहीं की जाएगी। अब बाद आदमी आ गए दूसरा, उसने मेहनत से कलमा पढ़ा दिया, आखिरत सुधर गई, मसला हल हो गया। अब आया मने वर्तेज, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए समझदार इंसान का खात्मा सुधरे। अब औरत की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दूसरे आलम में परवाज़ कर रहा है, हम इस आलम में हैं। और खान इस आलम तक थी, अब दूसरे आलम में वो परवाज़ कर चुका, अब इन बेहुदा बातों की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखें बंद कर दी जाए, उसके मुंह पर पट्टी बांध दी जाए, उसके दोनों पैर के अंगूठे मिला करके उस पर पट्टी बांध दी जाए, उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन की तैयारी कर दी जाए, पहली फुर्सत में गुस्ल दे दिया जाए। और गुस्ल देने के बाद कफन का लिबास, औरत को 5 कपड़े हैं, इज़ार, लिफाफा और कमीज़ के अलावा सीनाबंद और ओढ़नी, 2 कपड़ों का इजाफा और किया। मर्द को 3 कपड़े, औरत को 5 कपड़े दिए, जिसमें औरत का सीनाबंद और औरत का दुपट्टा एक्स्ट्रा कर दिया गया, इसलिए कि ये हया, इफ़्फ़त और पाकदामनी का अदीम शेवा रही। इसलिए इस्लाम ने मौत के वक्त भी उसका लिहाज किया। कितनी पाकीदा इस्लाम की तालीम है, किस कदर ऊंचा मकाम अल्लाह ताला ने अता फरमाया है। इस पर बात चली थी कि सम्मान, हक नहीं दिया, सम्मान नहीं किया, सारे हुकूक मर्दों को दे दिए, औरत को कोई हक नहीं दिया। हालांकि इस्लाम ने औरत को जो हक दिया है वो किसी भी मज़हब ने औरत को हक नहीं दिया। औरत मलिकतुद्दार है, औरत हया, इफ़्फ़त और पाकदामनी का अदीम शेवा है। वो मर्द की खिदमत करेगी, वो बच्चों के हक़ के अंदर मुरब्बिया बनेगी और घर को एक जन्नत का नमूना बनाएगी। ये तरबियती जितनी इस्लाम में निज़ाम है, इन तरबियती निज़ाम को मर्द को खूब अपने एतबार से ज़िम्मे में लेना है। उसके लिए घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का वक्त फारिग करना है। आम तौर पर लोग यूँ समझते हैं, बल्कि ज़ुबान पर कह भी देते हैं, चलो नहीं दीन सीखने के लिए बड़े हो जाएंगे तो चिल्ला लगा देंगे, 4 महीने लगा देंगे, दीन सीख लेंगे। ये बेतवज्जुगी है। सीखने का ज़माना बचपन का है और बचपन में जो सीख लिया जाता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये तख्ती पर जो लिख लिया जाता है
वो लिखा हुआ कभी बुझाया नहीं जा सकता। और इंसान की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अजान भी हो गई, तकबीर भी हो गई, अब उसके बाद नमाज ही खड़ी करने की देर है। और जनाजे की नमाज में न अजान है न तकबीर है, सीधे से नमाज पढ़ ली जाती है। इसकी हिकमत यही है कि अजान भी पहले हो गई, तकबीर भी पहले हो गई, अब सिर पर नमाज बाकी थी। वो इंसान के जनाजे की नमाज है। और इंसान की ज़िंदगी तकबीर के बाद जमात खड़ी होने तक की दुनिया की ज़िंदगी है। कोई 60 बरस में पूरी करता है, कोई 70 बरस में पूरी करता है, कोई 80 बरस 100 बरस में। ज़िंदगी ख़त्म है। अब इंसान की मौत के बाद अमल का सिलसिला ख़त्म। कोई भी अमल कर नहीं सकता कब्र में, कुछ भी नहीं। जो नेक काम किए उसके सीले मिलने का ये दिन है। जब माँ बाप की उम्र बड़ी हो जाती है, औलाद करने के लायक हो जाती है, धंधा बिजनेस कारोबार काम काज मजदूरी खेती, तो माँ बाप से यही कहती तमे बैठा बैठा खाया करो, हमें काम करशु। यही एक सिलसिला होता है कि अब आपका काम का टाइम नहीं रहा, अब आपकी उम्र आराम करने की है, आपने बहुत किया, अब आप आराम करो। इस तरह इंसान जिंदगी पर अमल की मशक्क़त बर्दाश्त करता है। नम कनौमतिल अरूस, अब उसकी कब्र में सवाल जवाब के बाद कह दिया जाएगा तुमने दुनिया की बहुत मशक्क़तें झेली, तहज्जुदें बहुत पढ़ी, इशराक चाश्त अवाबिन फराइद नवाफिल रोज़े हज सदका खैरात सब करके आए। अब जैसे दुल्हन अपने अलीशा के अंदर सो जाती है, तुम ऐश और इशरत के साथ अपने कब्र में सो जाओ, इसलिए कि मशक्क़त का ज़माना तुमने पूरा कर दिया। और राहत के बाद, तकलीफ के बाद अब तुम्हारा राहत का दौर शुरू हुआ। और बास बादल मौत की दिन जब दूसरी मर्तबा सूर में फूका जाएगा, उस वक्त से इंसान उठेगा और उठ करके मैदान क़यामत की तरफ चलेगा। तब तक उसको अपनी कब्र के अंदर ऐश और इशरत की नींद सोना है। उस कब्र की आराम की ज़िंदगी को बनाने के लिए इंसान की ये मोहताज ज़िंदगी है। और लिदुल मौत वबनउल खलाब, माएँ बच्चे इसलिए जनती हैं कि ये मरने वाले हैं, मकान इसलिए बनाया जाता है कि ये वैरान होने वाला है। अलमौत कासुन कुल्लु नफ्सिन शारिबु वल कब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलु, मौत का प्याला पीना पड़ता है, कब्र के दरवाजे से दाखिल होना पड़ता है। लिहाजा मैंने ये तरबियत के सिलसिले में चंद ज़रूरी निकात आपकी खिदमत में पेश कर दिए। इन ज़रूरी निकात पर आप अमली जामा अपने घरों के अंदर पहनाएं और इसी तरह इब्तिदा से तरबियत का निज़ाम बनाएं, तो हमारी औलाद हमारे लिए जो है खुशगवार माहौल कायम करेगी। वरना औलाद माँ बाप के लिए अजीरन बन जाती है और कांटा बन जाती है और बद्दुआ देती है। बद्दुआ पर आखिरी वाक़या ज़िक्र करो, ये वांझिया का लफ्ज़ बोल देती है, लेकिन उसको मालूम नहीं कबूलियत की घड़ी होती है। 24 घंटे में रोज़ाना मकबूल घड़ी होती है, और मकबूल घड़ी मैच हो गई, कबूल हो गया, शादी भी करे, खूब ऐश इशरत सब कुछ हो गया, लेकिन वो मकबूल घड़ी का जुमला था तो औलाद नहीं होगी। कितनी ही मेहनत करे अब वांझिया ही रहेगा, बेटा बेटे औलाद होगी नहीं। आका को मक्का के मुशरिकों ने जनाब अब्दुल्ला और कासिम और इब्राहिम के इंतकाल पर, कासिम के इंतकाल पर कहा था मोहम्मद मकतूउन नस्ल हो गया अलियाज़ु बिल्लाह, और मक्के में पेड़े बांटे कि जिसका नस्ल नहीं रह सका, जिसका नसब बाकी नहीं रह सका, वही उसका दिन थोड़ा बाकी रह सकता है। ये ताना दिया, बहुत खतरनाक ताना। तो माओ अपनी ज़ुबान सोच संभल करके इस्तेमाल करे। माँ की दुआ और बद्दुआ औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल होती है। 3 बद्दुआएँ कभी रद्द नहीं होती, कबूल हो ही जाती है। माँ बाप की दुआ और बद्दुआ औलाद के हक़ में कबूल हो जाती है। जुरेज नाम का एक इंसान था, बनो इसराइल का बहुत बड़ा आबिद, बहुत बड़ा आबिद, बहुत खूबसूरत चमकदार, और इबादत की वजह से उसकी चमक बढ़ गई थी, पूरी कौम में मकबूल हो गया। दूर दूर से मुरीदीन का वहाँ बहुत बड़ा समंदर रहता था। जब इंसान की मकबूलियत होती है तो हसद करने वाले होते हैं, बदीने सारू ना लगतो હોય, खराब तो लागे જ कोई नहीं कि आनु नाम की मतलब बड़ी થઈ ગયું। अब जुड़े चमकता दमकता रोशन खूबसूरती की वजह से हसद भी था।
اور مقبولیت بھی بہت ہو گئی. اب اسی کے مرید بڑھ رہے ہیں اور دوسرے پیر صاحب کا کوئی خیالت نہیں رکھتا ہے. حسد پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں حضرت جریج کو مبتلا کیا. ماں بڑی عمر کی تھی. صاحب فراش بستر پر تھی, بچھونے پر. ایک مرتبہ ماں کو رات کے وقت جریج کی ضرورت پیش آئی اور یہ اپنی خانقاہ میں سوتا تھا. خانقاہ میں رہے مریدوں کے ساتھ. اب ماں صاحب فراش ہو گئی اور ضرورت پڑی جریج کی. تو اس وقت ایک دن رات میں ماں بہت پریشان تھی. کہا یا جریج کوئی جواب نہیں, یا جریج کوئی جواب نہیں, یا جریج کوئی جواب نہیں. پیر صاحب ہیں, لاکھوں کی تعداد میں مرید ہے. ماں نے کہہ دیا جریج اس وقت تک تو نہ مرے جب تک کہ زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے. بہت عبرت. یہ ان 3 بچوں میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں بولا ہے, گہوارے میں بولا ہے. ان میں ایک جریج بھی ہے. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان عبداللہ آتانی الکتاب. 3 بچوں میں ایک بچہ یہ ہے. ماں کو خدمت کی ضرورت تھی اور ماں ایک رات بہت پریشان تھی. 3 مرتبہ ندا دی اور تیسری مرتبہ میں ماں کی زبان سے نکل گیا تیری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ تو زانیہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. زنا کر لے یہ نہیں کہا, چہرہ نہ دیکھ. قدرت کا عجیب کرشمہ. ماں کی بد دعا کیسے قبول ہوتی ہے, کیسے قبول ہوتی ہے. عجیب انداز. لوگوں کو حسد پیدا ہوا. اب حضرت جریج کو پھنسانا کے لیے پلان بنا. اور پلان کیا بنا؟ تاریخ کی سگی روایات میں یہ واقعہ مذکور ہے. وہ حاسدین جو جریج کی مقبولیت کو برداشت نہیں کر سکے, انہوں نے فاحشہ عورت کھڑی کی اور فاحشہ عورت بازاری کھڑی کر کے حضرت جریج کے ساتھ سب کچھ قربانی دے کر بھی غلط کاری کے لیے اس کا آمادہ کیا. عورت کا دھندا تھا, عورت کا دھندا ہی یہ تھا. وہ گئی, حضرت جریج نے اس کی طرف کوئی نظر نہیں. اس نے اپنا جمال بکھیرا, اس نے عجیب جو ہے نخرے کی. حضرت جریج نے اس سے منہ پھیر لیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. پاک دامن تھے. عورت اپنے تمام حربوں میں ناکام رہی. قرآن کہتا ہے وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. عورت کی مکاری, پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے. عورت کی مکاری بڑی خطرناک. اب بہت کوشش کی لیکن جریج پر چلی نہیں. اللہ کا فضل ہوا. ماں نے کہا تھا تو زانیہ کا چہرہ دیکھ لے. یہ چہرہ تو چونکہ وہ صومعہ میں داخل ہو گئی. اب عورت کے سارے حربے ناکام ہوئے تو جاتے جاتے اس نے جو حضرت جریج کا بکریوں کا چرواہا تھا وہ اس احاطے میں رہتا تھا, تو جاتے جاتے اس نے اپنے سارے حربے چرواہے پر استعمال کی. گوواڑ تھا اس حضرت جریج کا, اور چرواہے نے اس بدکار عورت کے ساتھ خراب کام کر لیا, زنا کر لی, اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا. اب بچہ جب پیدا ہوا تو وہی حاسدوں کی جو پارٹی تھی, وہ حاسدوں کی پارٹی نے اس بچے کو آگے کر کے گود میں بچہ لے آئے, اور گود میں بچہ لے آ کر کے لوگوں سے کہا دیکھو دیکھو یہ بزرگی مارتا ہے, شیخی مارتا ہے, اور لوگوں کا پیر بنا بیٹھا ہے. اور یہ عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. عورت نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے. پیچھے بہت بڑی بھیڑ. اب آنن پھانن منٹوں میں جو ہے سیکنڈوں میں وہ جریج کا جو عبادت گاہ تھی خانقاہ, اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور اس کا نشان بھی باقی رہنے نہیں دیا کہ بزرگی کے لباس میں ایسے خراب کام کرتا ہے. حضرت جریج نے فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ تو نے اس کے ساتھ میں نے کہا میں نے کوئی بدکاری نہیں کی, میں نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. پھر حضرت جریج نے فرمایا اس بچے سے پوچھو کہ تیرا باپ کون ہے. حضرت جریج نے فرمایا اس بچے سے پوچھو کہ تیرا باپ کون ہے.
उन 3 बच्चों में का एक बच्चा ये है जिन्होंने बचपन में बोला था, तो उन्होंने कहा, वो बच्चे ने गहवारे में अभी 1 दिन का ताज़ा नमौलूद है, और नमौलूद यूँ कहता है कि मेरा बाप फुलाना चरवाहा है, मेरा बाप फुलाना चरवाहा है। इस पर एक और बात कि आजकल, चलो जाने दो, वो एक और बात है, शायद कोई समझे या न समझे, ये टेस्ट वो टेस्ट, इससे साबित उससे साबित, लेकिन जब अल्लाह किसी के इज्जत, इफ़्फ़त और उसकी पाक दामनी का ख्याल रखते हैं तो इस तरह अल्लाह ताला गोयाई अता फरमाते हैं। तो वो बचपन में बोला, लेकिन माँ की बद्दुआ तो कबूल हो गई। माँ की बद्दुआ क्या थी? उस वक्त तक तू न मरे जब तक कि ज़ानिया का चेहरा देख न ले, तो वो बदनामी। लेकिन उसके बाद में लोगों ने बहुत माजरत की, माफ़ी मांगी, रोए धोए और बहुत आहोजारी की, गिड़गिड़ाए और कहा कि हम आपको सोने और चांदी का बना देते हैं कमरा। हज़रत जुरैज ने कहा, सोने और चांदी के कमरे की मुझे ज़रूरत नहीं, मेरा जैसा पुराना था वैसा ही उसी हाल का हो जाए। ये है बद्दुआ। औरत को चाहिए कि अपनी ज़ुबान से ऐसा कोई कलीमा हरगिज़ न निकाले जो औलाद का मुस्तकबल तारीख कर दे। फिर बापुओं के चक्कर लगते हैं, फिर न जाने क्या से क्या होता है। हम तो मौलवी साहब लोग हैं और कौम की बदहाली पर अजीब अजीब शिकायतें और अजीब अजीब बातें उम्मत की तरफ से आती है, और लोग कहते हैं ये हो रहा है, 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 फुला बावों के पास, फुला साधुओं के पास, फुला हैयत में, फुला जगह, ये वो तेरी कौम की बेटियों को हम देखते हैं। ये सारी शर्मिंदगी की चीज़ें, क्योंकि कान अल्लाह ने दिए हैं सुनने के लिए, सुनना भी ज़रूरी है, और माशरे की बदहाली पर नज़र डालना भी ज़रूरी है। कौम में रह रहे हैं, कौम के साथ काम कर रहे हैं, उसके लिए बुनियादी चीज़ क्या होती है? वो कभी लड़कपन में जो बद्दुआ होती है, वो बद्दुआ क्या नतीजा मुरतब कर जाती है इंसान देख नहीं सकता। बल्कि इतना ही नहीं, कभी माँ बाप की बद्दुआ इंसान का खात्मा भी बिगाड़ देती है, उसकी मौत भी बिगड़ जाती है, उसकी सकरात भी बिगड़ जाती है। ऐसे वाक़ये तो मेरी आंखों देखे हैं, लेकिन वो बयान करने के काबिल नहीं है। बुज़ुर्गों, तरबियत बहुत ज़रूरी है। हमारी ही माओं बेटों से खेला जाता है, हमारी ही बहन बेटियों के इज्जतों के परचे उड़ाए जा रहे हैं, और मुसलमान से ज़्यादा जुल्म के बाप में सस्ती कोई कौम नहीं रही। परचे हमारे ही उड़ाए जा रहे हैं। देखो मणिपुर में, देखो यहाँ मेवात में क्या क्या लोगों के साथ जुल्म उठाए जा रहे हैं। वो हमारी ही बहन बेटियां हैं, वो हमारी ही माएँ हैं, जिनको सरकारी आवास में मकान दे दिया गया। सरकार खुद अपनी ज़मीन में मकान दे, और सरकार खुद देने के बाद उसमें वो रहे, और उसको वो रोहिंग्या मुसलमान कह करके, बाहर से आए हुए मुसलमान कहकर सरकार ही उन पर बुलडोजर चलाए। ये जुल्म के इंतहा हो चुके हैं। ये जुल्म अब जो है फटने वाला है, ये जुल्म अब टूटने वाला है। अब इंसाफ का सूरज तुलू होने वाला है। नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। हमेशा तरबियत के बाबत औलाद की बहुत ज़रूरत। पहले तो हमारे बचपन के ज़माने में हमने भी बकरिए के अंदर होड़ी बना करके उसको पानी की फूंक मार करके तैराते थे। आज तो उसका तस्वुर भी नहीं हो सकता। और वो भी पुश्ती की चोपड़ी माँ बाप हवाले करते थे। जो धोरण पढ़ लिया ने, वो धोरण पढ़ लिया ने, उसकी पुश्ती के होते थे या नोटें भरी हुई हो तो उसमें से कोई कागज़ दे देते थे, और इसको फाड़ करके होड़ी की शक्ल बच्चा बनाता था। उस वक्त अभी साइंटिफिकेट था, उस वक्त अभी वो इंजीनियर था, और आज के मोबाइल के ज़माने के अंदर ये बिल्कुल यही बन गए। उसको बार पंचा साइंस हिसाब करते नहीं आता। चाहे नहीं एसएससी का लड़का हो, 10,100 उसको आंकड़े आते नहीं है, तो उस वक्त आता था। कौन सी तालीम अच्छी हो गई, कौन सी तरक्की हो गई? तनज़्ज़ुली हुई, बगैर कैलकुलेट के कोई हिसाब नहीं कर सकता है। और निसाब में एक सिराजी नाम की किताब आती है, जिसमें नयों का हिसाब किया जाता है कि मीरास की तकसीम में, तो उसके लिए कैलकुलेट 99 के बाद काम नहीं करता। 100 में से 99 पर अटक जाता है। आज तक दुनिया में कोई कैलकुलेट ऐसा नहीं हुआ जो पैसों का हिसाब करके बता दे। और हमारा इल्म आखिरत उन पैसों को नयों में बांट करके फिर उसका भी हिसाब जोड़ देता है।
وہ علم فرائض ہے۔ نیک خاتون جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئی، ہماری تو خاندانی اعتبار سے بڑی عمروں میں جو مائیں تھیں ان میں کی بڑی نیک پرہیزگار، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے 80,000 والی تسبیح پڑھ کر کے کئیوں کے لیے ایصال ثواب روزانہ جو ہے نیک اعمال، اور لمبے زمانے سے تہجد کی پابندی، لمبے زمانے سے جس میں تہجد کبھی ناگا نہیں ہوئی، ایک لمبا زمانہ گزر چکا۔ یہ چیزیں بہت آسان نہیں، اس لیے ذکر کی جاتی ہے کہ ہمارا مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا بھی بڑا مجمع ہوتا ہے، اس لیے ہم عورتوں سے بطور خاص مخاطب ہیں کہ عورتوں کو چاہیے کہ یہ تربیت کے جو باب بیان کیے گئے اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنا ہے۔ اور ہماری بڑی عمر کی مائیں بہنیں اور عورتیں جو گھاٹڑی پہنتی ہیں وہ تو ان باتوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے۔ پہلے ہمارے لباس بھی بہت عمدہ تھے اور اب لباس بھی بالکل بے حیائی کے بن چکے، لہذا پرانی تہذیب پر واپس آ جائیں اور پرانی تہذیب اور پرانے کلچر کو اپنی زندگی میں لے آئے، اور نمونے کے طور پر جو خواتین ابھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان کی زندگی کو ہم لائحہ عمل بنائیں اور ان کی تقلید کریں۔ اور مرد حضرات سے بھی گزارش ہے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ دیں، کم از کم اولاد کے آنے جانے کے اوقات کی نگہداشت ضرور رکھیں۔ ماں باپ اولاد گھر میں کب آتی ہے کب جاتی ہے اس کی نگہداشت رکھیں، گھروں سے باہر اولاد کو جانے کی فضا نہ بننے دیں۔ یہ رات کو 12 1 بجے گھر میں آتا ہے، جاتا کہاں ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد تو سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد انسان کی طبیعت چلتی ہی نہیں ہے کسی کام میں، الا یہ کہ تہجد کے وقت انسان کی طبیعت چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا تربیت کا نظام ماں باپ ہی ذمہ دار ہیں، اسی لیے الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے۔ جانبین سے حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مرحومہ کے جتنی نیک خصلتیں تھیں اولاد میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، سننے والوں میں، وہ تمام نیکیاں منتقل فرماوے، اور عالم آخرت کا جب سفر فرما گئی ہے اب یہاں عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، نیک اولاد، نفع بخش علم۔ اپنے پوتوں کو حافظ قرآن بنا دیا، نفع بخش علم ہے، عالم بنا رہے ہیں، نفع بخش علم چھوڑا، خیر خیرات کے کاموں میں حصہ لگ رہا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے ہر سننے والا اپنی زندگی میں ایسا کوئی نیک عمل کر کے جائے، اولاد کو توفیق ہو یا نہ ہو، لیکن میرے مرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ میری قبر میں نیکی کا پہنچتا رہے، اور ہر سانس اولاد جو سکھ کے ماحول میں لیتی ہے اور جو نیکی کے ماحول میں لیتی ہے اس کے نیکی قبر کے اندر مرنے والے کو پہنچتی ہے۔ 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، آخر میں 1 مرتبہ درود عالم کے مرحومین مسلمین کی نیت سے پڑھ لو، انشاءاللہ سب کی قبر میں 1 قرآن پہنچے گا۔ پھر دعا کر لیں۔